Hello friends, welcome to Apex Academy. Let me introduce myself to friends present here and to friends who are watching us online. It's Apex Academy and I am Mohit Damani. A brief introduction about myself. I am a qualified CFA and FRM from US. I am a CS as well as a CA finalist, and also I have done various diploma courses relating to financial decision making and economics. Well friends, this was a brief introduction about myself. Also, I would like to interact for a minute with my online friends. Friends, till now we were present in Kolkata. All these classes are conducted in Kolkata. So we have been providing our teaching services and teaching facilities in Kolkata. But the students who are sitting in Delhi, Mumbai or Bangalore, they were unable to avail our services. So now what we have done is we have decided is that we offer you the online subscription of our courses relating to class 12 economics boards and as well as CPT and other professional courses. But this lecture is going to be conducted relating to class 12 economics. May it be CBSE or ISC, both the classes, both the set of students are going to benefit from that. So you may be watching one or two videos that will be available online, and after that if you feel interested you can subscribe to us, you can subscribe for the videos. My contact number is present here as well as you can mail me. My contact number is 9038011206. I repeat 9038011206. Okay, that was all about myself and my academy. Now let us start up with the today's topic, and today's topic is market equilibrium. Okay, so let us start up with the topic for the day: market equilibrium and the basics of market equilibrium. What do you feel? What is market equilibrium? Equilibrium क्या होता है? किसे कहते हैं equilibrium? Equilibrium मतलब बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. They have read the whole economics and they feel still difficulty in what is equilibrium. हाँ, if you say the bookish definition, then the bookish definition is very simple, where quantity demanded is equals to quantity supplied. जहाँ पे ये हो जाता है, that is called equilibrium. But if you ask me, if anyone asks me, I will give a very simple definition that equilibrium is very simple thing. Equilibrium एक ही बात बोल के चलता है that equilibrium is a state of rest. Equilibrium is a state of rest from where there is no incentive either for buyer or for supplier to move away from the equilibrium. Equilibrium उस परिस्थिति का नाम है जहां पे एक बार अगर buyer और supplier आ जाए तो there is no further incentive either for buyer or for supplier to move away from the equilibrium. उनसे कोई फायदा नहीं होगा. Then question comes, what is market equilibrium? Well, let us understand all this topic with the help of a very simple story. Story सुनना पसंद करोगे? Let's understand this with a very simple story जो मेरे और आप सबकी लाइफ में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है. आप लोग में से सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई शर्ट खरीदने तो गया ही होगा, शर्ट वगैरह, जीन्स वगैरह. बॉस, इट्स वेरी सिंपल. इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, खास करके वो सब कुछ सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है, आप जो कर रहे हैं, वही चीज को इकोनॉमिक्स के फॉर्म में आपके सामने रख दिया है. इट्स नॉट लाइक कॉमर्स जहां पे 10-15 पॉइंट का रट्टा मारना है. इट्स ऑल लाइक इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल. इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट. जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग करते हैं, देखते हैं, जो करते हैं, वही चीज इकोनॉमिक्स के फॉर्म में आता है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. हम लोग सब कभी ना कभी शर्ट खरीदने गए हैं. शर्ट खरीदने जब आप जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? जैसे हर एक की एरिया में, आप जहाँ पे भी रहते होंगे, आपकी एरिया में एक मार्केट होता होगा जहाँ पे क्लोथ्स वगैरह अवेलेबल होते होंगे. वहीं पे आप जाते होंगे शर्ट खरीदने के लिए. मान लो कि मुझे एक शर्ट खरीदना था. मान लो कि मुझे एक शर्ट खरीदना था. आई वॉन्टेड टू परचेज अ शर्ट. ये मैं हूं और ये वो शॉप है जहां से मुझे शर्ट खरीदना है. रेदर ये वो मार्केट है. अब लॉजिक लगाओ, क्या मार्केट में एक शॉपकीपर होता है कि बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं?
जिस भी मार्केट में आप चले जाओ बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं, इसका मतलब कि यहां पे भी बहुत सारे शॉपकीपर होंगे, एक से ज्यादा शॉपकीपर्स। जब आप लोग परचेज करने जाते हैं शर्ट वगैरह, तो क्या आप लोग वहां पे अकेले जाते हैं या वहां पे और भी लोग रहते हैं जो खरीदना चाहते हैं शर्ट? डेफिनेटली और भी लोग रहते होंगे। तो जब और भी लोग रहते हैं तब फिर आपको क्या लगता है कि आप अकेले कंज्यूमर हैं या मैं अकेला कंज्यूमर हूं कि और भी कंज्यूमर्स हैं? और भी कंज्यूमर्स होंगे। सो लेट मी ड्रॉ, देयर आर मेनी कंज्यूमर्स। ओके, द सिचुएशन इज वेरी सिंपल। हम लोग क्या करने गए हैं, मैं वहां पे क्या करने गया हूं, वहां पे एक शर्ट खरीदने गया हूं। प्रोडक्ट है शर्ट। लेट्स अज्यूम कि उसका प्राइस है ₹1000। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड मैं बता देता हूं आपको है 50,000 और क्वांटिटी सप्लाइड भी है 50,000। अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, जो आपका बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है वह क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब मैं आपको ये प्रूव करके चलूंगा कि रियल लाइफ में इक्विलिब्रियम में ऐसा क्या होगा कि अगर डिस्प्लेस हो जाए तो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा। मान लेते हैं कि ये जो शर्ट है ना, शर्ट, इसका प्राइस 1000 रुपीज था। अब ये 1000 नहीं रह के एक बार के लिए इसका प्राइस हो जाता है 700। अगर इसका प्राइस 1000 नहीं रह के इसका प्राइस हो जाता है क्या? इसका प्राइस हो जाता है 700। अगर इसका प्राइस हो जाता है 700 तो आपके हिसाब से सोचिए कि क्या होगा? आपको इंसेंटिव आएगा और खरीदने का कि कम खरीदने का? ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आप और खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आप माइंडसेट बना के गए थे, मैं माइंडसेट बना के गया था कि मुझे एक शर्ट खरीदना है, आई एम रेडी टू पे 1000 रुपीज। अब वहां जाके मार्केट में जाके मुझे पता चला कि वो शर्ट तो 1000 रुपीज का, 1000 नहीं 700 में मिल रहा है। मेरे को तो शर्ट भी मिल रहा है, साथ साथ 300 रुपीज का प्रॉफिट भी हो रहा है, बच रहा है मेरे 300 रुपीज। तो मेरे को क्या इंसेंटिव मिलेगा? मेरे को इंसेंटिव मिलेगा कि लेट्स बाय मोर। आप सबको वो इंसेंटिव मिलेगा कि लेट्स बाय मोर। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फुलफिल हो गया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, और अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता था। ये चीज यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ये जो फुलफिल होगा ये किन कारणों से होगा? व्हाट आर द रीजंस व्हाई डिमांड विल इंक्रीज? फ्रेंड्स, इसका सिंपल 2 रीजन है। फर्स्ट, डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट कस्टमर्स। मैं जो एक शर्ट खरीदने गया था, अब मुझे क्या इंसेंटिव आएगा? लेट्स बाय 2। मेरे को क्या इंसेंटिव आएगा कि लेट्स बाय 2 शर्ट्स। साथ ही साथ क्या होगा कि जो लोग 1000 रुपीज में शर्ट खरीदने रेडी नहीं थे बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ देयर रीच, एट 700 इट विल बी इन रीच ऑफ सम पीपल। तो वो लोग विल बी, वो पर्संस दे विल बी रेडी टू बाय द शर्ट एट 700। सो कुछ न्यू कंज्यूमर्स आ जाएंगे मार्केट में, कुछ न्यू कंज्यूमर्स आ जाएंगे मार्केट में, जो लोग का क्या इंसेंटिव रहेगा कि लेट्स बाय द शर्ट। ये लोग पहले बायर नहीं थे एट 1000 रुपीज, बट एट 700 उनके मन में क्या फीलिंग आ रहा है? लेट्स बाय द शर्ट बिकॉज इट इज इन देयर रीच नाउ। ये हो गया कंज्यूमर साइड का बात कि कंज्यूमर साइड में क्या होगा। इट इज वेरी क्लियर, कंज्यूमर साइड में डिमांड जो है बढ़ जाएगा। मतलब ये शर्ट जो क्वांटिटी डिमांडेड 50,000 था, अब ये 50,000 नहीं रह के कुछ हो जाएगा 70,000 के आसपास, लेट्स से 70,000। ये तो हो गया किसका बात? कंज्यूमर साइड का बात। अब लेट अस टॉक अबाउट द सप्लायर साइड कि सप्लायर साइड में क्या फीलिंग आएगा, सप्लायर साइड वाला क्या रिएक्ट करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई ये बोल के चलता है कि जब दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन जब दाम गिर जाएगा तो सप्लाई गिर जाएगा। आप खुद अपने आप को एक सप्लायर की तरफ में रख के सोचो, अगर कोई चीज का दाम गिर जाता है, आप जिस चीज को बेच रहे थे उसका दाम गिर जाता है, दाम गिर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। सो यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड टू सप्लाई मोर और यू विल बी डीमोटिवेटेड टू सप्लाई लेस। ऑब्वियसली यू विल फील डीमोटिवेटेड, व्हाई शुड आई सप्लाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई डिक्रीज कैसे होगा कि जो नए सप्लायर तो आएंगे ही नहीं मार्केट में,
जो प्रेजेंट सप्लायर है ना, प्रेजेंट सप्लायर, उन लोगों का एक सेट जो होगा प्रेजेंट सप्लायर का, वो ये बोलेगा कि बॉस एट 700 वी आर नॉट गेटिंग द रिक्विजिट प्रॉफिट, we will close our doors, they will close their doors and they will say कि we won't be able to produce any more shirt at 700. हो सकता है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब दाम 700 हो जाएगा ना, तो ये सेट ऑफ जो सप्लायर्स है लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ में तो कंज्यूमर फुल फॉर्म में आ गया, कंज्यूमर जो है कंज्यूमर वो फुल फॉर्म में आ गया कि लेट्स बाय मोर एंड मोर एंड मोर, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो सप्लायर सेट है उसका एक सेट खत्म हो गया। दे आर नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड, दे फील कि मतलब कि 700 में दे हैव क्लोज्ड देयर डोर्स एंड रिड्यूस्ड देयर प्रोडक्शन। अगर हम ये लिखें कि यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है अब ये 50,000 रहेगा कि 50,000 से कम हो जाएगा? कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो 50,000 से कम होके ये किधर आ जाएगा? ये आ जाएगा मान लो 30,000 की तरफ। ये तो बहुत गड़बड़ वाला सिचुएशन हो गया। शुरुआत में क्या हो रहा था? शुरुआत में एकदम सिंपल सा चीज हो रहा था। शुरुआत में क्या हो रहा था कि एक कंज्यूमर था, कुछ कंज्यूमर्स थे, कुछ सप्लायर्स थे, दोनों का क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड बराबर था। 1000 रुपीज में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जितना इन लोग को डिमांड था उतना ही सप्लाई हो रहा था, सब बराबर में एक दूसरे को दे के चल रहे थे। अब क्या हुआ? दाम हो गया 700। जब दाम हो गया 700 तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है कंज्यूमर्स का ये तो बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है ये गिर गया। और ये जो गैप क्रिएट हुआ ना, ये किस वजह से क्रिएट हुआ? ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये किस वजह से क्रिएट हुआ है? ये क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस। और इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपनी बात करें तो इसको बोलते हैं डिमांड सप्लाई मिसमैच। ये हो गया डिमांड सप्लाई मिसमैच। लेकिन टेक्निकल टर्म्स जो आपके बुक में लिखा हुआ है, अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। व्हाई? बिकॉज डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, सो देयर इज अ गैप बिटवीन द टू एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का सिचुएशन अगर हो गया तो ये किस तरह से ठीक होगा? मतलब मार्केट तो हमेशा क्या ऐसे ही रह जाएगा कि 30-70 हजार का डिमांड है, 30,000 का सप्लाई है? क्या मार्केट का सिचुएशन हमेशा ऐसे ही रहेगा? बॉस एक चीज हमेशा याद रखना, रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, इक्विलिब्रियम को किसी का हेल्प का दरकार नहीं है। वापस इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेगा? तो वो इक्विलिब्रियम है ना, अपने आप में इतना पावरफुल चीज है कि उसको किसी का हेल्प का दरकार नहीं है। इक्विलिब्रियम इज इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल थिंग, वेरी पावरफुल। इट विल ब्रिंग मार्केट फोर्सेस इन सच अ वे दैट वापस अगेन इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आ जाएगा। And that is the magic of equilibrium. This is the true magic of equilibrium. ये कैसे होगा? देखो ये वाला जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जब अगर अपने सेल वगैरह लगता है ना, जब सेल वगैरह लगता है, प्राइसेस कम हो जाता है तो एक सेल का ऑफर आता है, तो वहां पे आप लोग क्या देखते हैं? बहुत भीड़ हो गई तो नए नए कंज्यूमर्स आ गए, जैसे यहाँ पे आए हैं। ये एग्जैक्टली उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे सेल का ऑफर लगा है। तो सेल का ऑफर में कंज्यूमर्स लोग ज्यादा आ सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो पहला चीज मैंने बोला कि नए नए कंज्यूमर्स आ जाएंगे, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रूव हो गया कि सेल वगैरह जब लगती है तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो नहीं खरीदने वाले होते हैं वो लोग भी खरीदने चले जाते हैं वहां पे, बिकॉज एट रिड्यूस्ड प्राइसेस दे आर गेटिंग द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो ये हो जाता है। अब सेकेंड सिचुएशन में बताता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में आप सबने एक चीज देखा होगा या नोटिस किया होगा, मूवीज वगैरह तो देखे है ना आपने, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब भी कोई लोन वगैरह पे नहीं कर पाता है तो कुछ घर नीलाम वगैरह होता है। उसमें नीलामी कैसे होता है? बहुत सारे कंज्यूमर्स बैठे रहते हैं, एक वहां पे सप्लायर बैठा रहता है। वो क्या बोलता है? इस घर को बेचना है, इस घर की कीमत समवेयर अराउंड 1 करोड़ है। तो कोई बोलता है 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, लास्ट में वो करता है 1 2 3 और 1 करोड़ 50 लाख में डील सील हो जाता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। ये चीज ऑक्शन वगैरह तो होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब यहाँ पे वो चीज कैसे एप्लीकेबल है या इक्विलिब्रियम वापस कैसे है? क्वेश्चन ये उठता है। तो इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से वापस आएगा कि होगा क्या? होगा ये कि इन लोग तो 70,000 डिमांड कर रहे हैं, इन लोग 30,000 ही दे रहे हैं। यहाँ मैं कंज्यूमर खड़ा हूं, मेरे साथ और भी बहुत लोग खड़े हैं, हम लोग कंज्यूमर साइड में। मैं शर्ट खरीदने गया था तो मैं कंज्यूमर, आप लोग कंज्यूमर, सब हम लोग इस तरफ में खड़े हैं, हम लोग सब कंज्यूमर साइड में है। सामने वाला सप्लायर साइड है, हम लोग 70,000 डिमांड कर रहे हैं, वो दे कितना रहा है? 30,000। इसका मतलब सबको सब कुछ तो मिलने वाला नहीं है, कुछ लोग तो खाली हाथ जाने वाले हैं। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। अब क्या होगा?
कि उसमें से एक कंज्यूमर, मान लो कोई भी एक कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि अच्छा अब प्रोडक्ट तो इजीली मिल नहीं रहा है, वो क्या करेगा, वो इस सप्लायर को जाके बोल देगा कि देखो ए सप्लायर, मार्केट में प्राइस चल रहा है 700, बट इट इज वेरी क्लियर फॉर मी कि आई वांट टू परचेज द शर्ट, I want to purchase the shirt and I am ready to pay you 800 rupees. I am ready to pay you 800 rupees. क्यों? क्योंकि इसको शर्ट लग रहा था कि अगर 70,000 क्वांटिटी डिमांडेड है, 30,000 सप्लाई है, तो उसको शर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 700 में इट वॉज डाउटफुल कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 800 जब वो दाम बढ़ा दिया तो क्या उसको शर्ट मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि आप अब एक सप्लायर के एंड से आप सोचिए, मार्केट में आप कोई चीज ट्रेड कर रहे थे, मार्केट में उस चीज का दाम चल रहा था 700, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि आई एम रेडी टू बाय इट, एक्सक्यूज मी, आई एम रेडी टू बाय इट एट 800। इसका मतलब क्या होगा, आप मुझे बेचना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि 100 रुपीज का प्रॉफिट तो आपको ज्यादा मिल रहा है। जब 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो आप को मोटिवेशन आएगा उस चीज से, आप मुझे ही सेल करना चाहेंगे, मेरे को ही प्रेफरेंस देंगे। तो होगा क्या कि जब ये कंज्यूमर यहाँ पे आके बोल देगा ना कि 800, मैं 800 पे परचेज करने रेडी हूं, तो ये सप्लायर तो इसको बेचेगा ही, साथ ही साथ ये सप्लायर लोग भी तो देख रहे होंगे कि 800 में खरीद रहा है, तो इनके मन में क्या फीलिंग आएगा? इनके मन में फीलिंग आएगा कि मार्केट में प्राइस अब 800 में ही ट्रेड करना है। दे विल बी फीलिंग इंटरेस्टेड कि इसको ट्रेड करना है। साथ ही साथ एक और चीज होगा, एक और चीज क्या होगा कि इस कंज्यूमर को जब हम लोग ले जाता हुआ देखेंगे कि इतना जितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, बाकी सब लाइन में खड़े हैं, जितना ये क्वांटिटी डिमांड कर रहा था ये हम लोग के सामने से लेके निकल रहा है और हम लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं, तो हम लोग के अंदर क्या फीलिंग आएगी? हम लोग के अंदर फीलिंग आएगी क्या हम लोग नहीं दे सकते 800? ये वाला बोलेगा कि हमको भी डाउट है कि इस तरह से लाइन में खड़ा होकर पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो लेट्स डू वन थिंग, ये बोलेगा कि अगर ये 800 पे कर रहा है तो हम क्या कम है, आई एम रेडी टू पे 850। ये मार्केट में दाम बढ़ा देगा 850 का, ये बोलेगा 850 में। अब सारा सप्लायर लोग इसको बेचना चाहेगा माल, और एवरी सप्लायर वुड बी विलिंग टू सेल ऑल देयर प्रोडक्ट्स एट 850। ये इसको देखेगा तो ये बोलेगा 850, ओके आई एम 900, आई एम रेडी टू पे 900। ये बोलेगा आई एम रेडी टू पे 900। एक और निकल के आएगा, वो बोलेगा कि 900, आई एम रेडी टू पे 950। ये बोलेगा आई एम रेडी टू पे 950। लास्ट में कंज्यूमर निकल के आएगा, वो बोलेगा कि 950, आई एम रेडी टू पे 1000 रुपीज, आई एम रेडी टू पे 1000 रुपीज। प्राइस क्या हुआ, 700 हो गया था, 750, फिर एक आदमी बोला 800, 800 से 850, 900, 950, अल्टीमेटली 1000 पे आ गया। अब 1000 पे प्राइस आ गया, मतलब ये जो प्राइस जो 700 एक बार के लिए हो गया था, ये वापस कट के क्या हो गया एक बार के लिए 1000। अब वापस जब ये 1000 हो जाएगा तो आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन मार्केट में होगा? आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन निकल के आएगा? मार्केट में अब क्या होगा कि सबसे पहले कंज्यूमर साइड का बात करें तो ये लोग जो 1000 में क्या देख के आए थे लोग मार्केट में, ये लोग इसी खुशी से आए थे कि जो प्रोडक्ट हम लोग को 1000 रुपीज में 700 में मिल रहा था, जो शर्ट 700 में मिल रहा था, इस वजह से ये लोग आए थे क्योंकि 700 में दे कैन अफोर्ड, बट व्हेन द प्राइस इज 1000 विल दे बी एबल टू अफोर्ड इट? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि पहले भी दे वर अनएबल टू अफोर्ड इट एट 1000। तो ये लोग क्या होंगे कि जब मार्केट में प्राइस 1000 हो जाएगा ना, तो ये कंज्यूमर्स मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये लोग क्या होगा कि ये लोग मार्केट से निकल जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज होगा, एक और चीज क्या होगा कि यहां से कुछ लोग चले गए थे ये बोल के कि अपना शटर क्लोज कर दिया था, ये बोल के कि मेरे को रिक्विजिट प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब प्राइस 1000 हो जाएगा तो क्या उनको रिक्विजिट प्रॉफिट मिलेगा? ऑब्वियसली उनको रिक्विजिट प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो ये लोग वापस मार्केट में री एंटर कर जाएंगे। इसका मतलब क्या सिचुएशन बना? सिचुएशन ये बना कि इस तरफ से जब प्राइस 1000 हो जाएगा ना, तो इस तरफ से क्या होगा, डिमांड गिरने लगेगा। इस तरफ से क्या होगा, डिमांड जो है इसके बाद जो 70,000 हो गया था ना डिमांड एक बार के लिए, वो वापस गिरने लगेगा। दिस 70,000 विल बिकम अगेन 50,000। साथ ही साथ एक और चीज होगा
कि ये जो क्वांटिटी सप्लाइड था ना, ये नए पुराने वाले कंज्यूमर्स निकल गए, नए वाले कंज्यूमर्स निकल गए जो एक्स्ट्रा आए थे, और ये लोग भी अब 1000 में उतना ही खरीदना चाहेंगे। जैसे मैं किस लिए एक्स्ट्रा खरीद रहा था, एक शर्ट 700 मिल रहा था, 300 बच भी रहा था, चलो लेट्स बाय मोर, लेकिन 1000 मैंने माइंडसेट बना के गया था, 1000 में वो शर्ट मिल रहा है, तो व्हाई आई विल बाय मोर, तो आई विल नॉट बाय मोर एंड यू विल आल्सो नॉट बाय मोर। तो इसका मतलब क्या होगा, जो नए कंज्यूमर्स है वो भी निकल गए और ये लोग भी नॉर्मल में आ गए, तो ये लोग का वापस क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, 50,000। साथ ही साथ जो सप्लायर्स लोग निकल गए थे, जो सप्लायर्स का सेट निकल गया था, 1000 रुपीज में उनको उनका प्रॉफिट वापस मिल रहा है, तो दे विल अगेन फील मोटिवेटेड। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना सप्लाई जो है वो बढ़ा देंगे, और वो कितना हो जाएगा वापस 50,000। मतलब अल्टीमेटली क्या निकल के आया, कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम उस परिस्थिति का नाम है जहां एक बार कंज्यूमर सप्लायर आ जाए तो वहां से कभी भी नहीं जाना चाहेंगे। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। साथ ही साथ मार्केट क्या होता है, मार्केट का आपने बहुत बेसिक डेफिनेशन जान के रखा है कि मार्केट में कंज्यूमर होता है, एक सप्लायर होता है, और दोनों जहाँ पे मिलते हैं, किसी को कुछ खरीदना होता है, किसी को कुछ बेचना होता है, तो वो लोग दोनों वहां पे मिलते हैं। और मार्केट इक्विलिब्रियम का पहला पार्ट क्या पढ़ा कि 1000 रुपीज में अगर इक्विलिब्रियम था, अगर कोई भी कारणों से, किन्हीं भी कारणों से, फॉर एनी रीजन, सेटरेस पेरिबस वाला पार्ट का कोई भी रीजन की वजह से प्राइस इज reduced to 1000, market forces will bring actions in such a way that price will again come to 1000. प्राइस 1000 से 700 हो गया था, मार्केट विल ब्रिंग इट्स फोर्सेस, कंज्यूमर्स बढ़ गए, सप्लायर कम हो गए, फिर क्या हुआ, ऑक्शन होना चालू हो गया, सबको लगा कि अब हम खरीदेगा, और इस वजह से क्या हुआ, वापस मार्केट फोर्सेस में ऐसा हुआ, डिमांड बढ़ा, सप्लाई कम हो गया, डिमांड सप्लाई मिसमैच, जिसको बोल रहे थे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। एक्सेस डिमांड के बाद क्या होगा कि वापस ये लोग बढ़ा देंगे अपना बिड, 800 900, ऑक्शन वाला, फिल्म वाला एग्जांपल, ऑक्शन होगा जैसे, उसमें बिड बढ़ा देते हैं, वैसे ही लोग बोलेंगे हम लोग खरीदेंगे। जब ये खरीद के ले जाएगा, लाइन में लगे हुए लोग, एक आदमी लेके जा रहा है, तो सबको फीलिंग है लेट्स पे मोर, एक्स्ट्रा वाला एक्स्ट्रा हम भी दे सकते हैं, ये 850 900 950 और वापस 1000 पे जो नए कंज्यूमर्स आए थे वो लोग मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, और नए जो सप्लायर निकल चुके थे मार्केट से वो लोग वापस मार्केट में आ जाएंगे, बिकॉज दे विल बी गेटिंग देयर रिक्विजिट प्रॉफिट, और इस तरह से कुछ होके चलेगा। ओके, सो दिस वाज द लेक्चर दैट वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट। जो इसके बाद का कंटिन्यूएशन वाला लेक्चर है, वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।